When we will be talking about the energy of the particle executing simple harmonic motion, you may consider that we have this particular horizontal line, and on this horizontal line we have some point marked as point O. And furthermore, imagine that we have some particle which is displaced up to the point P, with O being the mean position, and P, it is having a displacement x as measured from the mean position. From mean position up to the point P, the distance or the displacement, we assume it to be x beta. Now, when we are having the particle at the mean position, the particle is not at all showing any type of motion. Motion, or in simple words, we can say that at the point O, when you are fixing the particle at the mean position, because rather no work is done on the particle to get it displaced up to some other point, we will say that the particle, on account of no work done on this particle, it will possess zero potential energy. Or when we will be shifting it to the point P, we are performing some work, we are doing some work in order to shift this particle from O up to point P. We are performing some work, and that work done, that will get stored in the form of the potential energy at point P. And you can assume that there is another point, say Q, at an additional distance from the point P as measured to be equal to dx beta. Now, when we release the point object at the point Q, then due to the potential energy, it will try to execute the simple harmonic motion with O as the mean position. And as a result of that, when you just release this point object at this point Q, it will move back towards the mean position. Due to the inertia, it will overshoot its mean position, and hence in this way at the point O, earlier where it was showing no energy at all, now it will possess kinetic energy because its velocity will be maximum at the point. फिर से बेटे बड़े ध्यान से सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स एक बार बेटा, O पॉइंट पर आपका पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है, आपने इस पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट को बेटे O पॉइंट से लिटिल बिट डिस्प्लेस कर दिया है Q P पॉइंट तक, और P पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट O x के बराबर आपने इमेजिन कर रखा है। और जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे, जितना आपको वर्क करना पड़ा O से लेकर P तक डिस्प्लेस करने में, that will be stored in the form of the potential energy of the particle at point P. और जब आप इसको P पे या Q पे रिलीज कर देते हो, तो it will move back towards the mean position. अब इसके पास inertia भी है, it will overshoot the mean position and it will go to the other extreme position, and in this way it will start moving like simple harmonic oscillator beta. So P पॉइंट पर या Q पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और सेंटर पे जो मीन पोजीशन है, यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है रादर, इसकी काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी मैक्सिमम बिकॉज यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। इन सिंपल वर्ड्स बेटे, जब भी मैं टोटल एनर्जी की बात करूंगा, टोटल एनर्जी SHM में ये बेटे आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर होगा। अभी प्रेजेंटली आइए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बेटे कैलकुलेशन करके देखें कि पोटेंशियल एनर्जी हम जिस तरीके से हमने डायग्राम बनाया है कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे बेटे। लेट अस फोकस अपॉन दिस पोटेंशियल एनर्जी बेटा। जब आप इसको O से लेकर P तक डिस्प्लेस कर देते हो पार्टिकल को, O से लेकर P तक डिस्प्लेस करने पे इसमें बेटा जब ये P पॉइंट पर पड़ा है, इसमें एक बेटे इस तरीके से A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x के बराबर एक्सेलरेशन जो है बेटा ये स्टोर हो जाएगी।
और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देता है कि ये जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और अब ये देखें एक्सप्रेशन आया कहां से, एक्सेलरेशन जो है ये बेटे आपका रिस्टोरिंग फोर्स का सिंबॉलिक है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, एम हमने दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दिया था, सो एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू x या y। आपने जो प्रीवियसली ऑलरेडी कर भी रखा है कि आपका जो एक्सेलरेशन है, पहले हमने बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला बनाया था, फिर उससे हमने डेरिवेटिव लेकर वेलोसिटी बनाई, फिर डेरिवेटिव लेकर एक्सेलरेशन बनाई। कल आपने यहाँ पे y लिखा था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको x लिख दिया और कोई इसमें चेंज नहीं। अब डियर चिल्ड्रन, अगर आपके पास एक्सेलरेशन पड़ी है तो आप इसको बेटा फोर्स देख लीजिए कि आपके पार्टिकल पे कितना एक्ट करेगा। इट विल बी m इंटू ए, इट विल बी माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू x के बराबर P पॉइंट पर आपके ऑब्जेक्ट पर मीन पोजीशन की तरफ इतना फोर्स एक्ट करेगा। अब आपने क्या किया, इसको P पॉइंट से Q पॉइंट तक थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट dx और शिफ्ट कर दिया, और यू विल हैव टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क डन इज f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। बड़े ध्यान से देखिएगा फिर से, फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है लेकिन आप इसको डिस्प्लेस उधर कर रहे हो, तो इट विल मीन दैट कि इनके बीच में f dx cos 180 इट विल बी माइनस f dx आ जाएगा बेटा, और f आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, इट विल बी माइनस माइनस प्लस m ओमेगा स्क्वायर x एंड dx। सो डियर चिल्ड्रन, आपको P से Q तक अपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने के लिए इतना वर्क जो है ये करना पड़ा। अब टोटल वर्क डन आप निकाल लीजिए, dw को इंटीग्रेट कर लो, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस m ओमेगा स्क्वायर x dx, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आप मान लीजिए x के बराबर है, और जो फैक्टर्स आपके इंटीग्रल से बाहर एडजस्ट होते हैं इनको बाहर एडजस्ट करिए, m ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रल x dx x dx 0 टू x आपने लिमिट्स जो है ये यूज किए हैं। सो बच्चों वर्क डन आपके पास जो है इट विल बी m ओमेगा स्क्वायर x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा बेटा। सो वर्क डन आपके पास बेटे जो है दिस इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और यही वर्क डन आपके ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बच्चों स्टोर हो जाता है। So potential energy is 1/2 m omega square and x square. Keep this thing always in mind. ये आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी हेल्पफुल भी रहेगा। So dear children, आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल एनर्जी पोजेस करता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, उसके लिए आपने ये फार्मूला बेटा डिराइव किया। आपको बच्चों याद होगा कल आपने y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t कुछ इस तरीके से किया था, फिर आपने इसका डेरिवेटिव लिया r ओमेगा कॉस ओमेगा t लिखा, फिर इसको आपने कुछ ऐसे लिखा था कॉस ओमेगा t को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब यहाँ पे y की जगह पे आपने बच्चों x लिखा है डिस्प्लेसमेंट, और जब आप डिस्प्लेसमेंट x कंसिडर कर रहे हो आपका जो साइन ओमेगा t है इट विल बी x अपॉन r बेटे, x अपॉन r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वेलोसिटी विल बी r ओमेगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर आएगा बेटा, वही ट्रीटमेंट, नॉट एट ऑल डिफरेंट। So V will be equal to R omega, it is R square minus X square upon R का square, and V is equal to R omega square root में R square minus X square upon R, एक R ये कट जाएगा यहाँ पर, और आपके पास वेलोसिटी बच्चों बच गई ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ R का स्क्वायर माइनस X का स्क्वायर। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद आप बेटे काइनेटिक एनर्जी
फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पार्टिकल की बेटा, दिस इज इक्वल टू 1/2 mv² के बराबर है। आप जानते हैं सिंपल फार्मूला है, v की ये वाली वैल्यू डाल दीजिए, दिस इज ओमेगा एंड r² माइनस x², इसका सारे का स्क्वायर कर दीजिएगा। सो यू विल गेट दिस काइनेटिक एनर्जी टू बी इक्वल टू बेटा 1/2 m ओमेगा² r² माइनस x का स्क्वायर। सो डियर चिल्ड्रन, आपने पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी का भी जो फॉर्मूला है ये वर्कआउट किया। ये आपके पास आ गया 1/2 m ओमेगा² r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। डियर चिल्ड्रन चेक करिए और बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो यहाँ तक तो मैं उसको एक बार फिर से बेटा बता देता हूं। सारे बच्चे एक बार चेक करके बताइए बेटा। जपनप्रीत, नमन, राघव, रमन, सहज, अदिति, गुरसिमरन। ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ आ गया है, बाकी स्टूडेंट्स को, सारे बच्चों को। अब देखो बच्चों, हमने तो टोटल एनर्जी निकालनी है। हाँ जी बेटे, मैं वेलोसिटी वाला दोबारा बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट बेटे x हमारा जो है, कल हमने इक्वेशन किया था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या r साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसे लिखा होगा, वो सर्कुलर ट्रैक पे जब पार्टिकल आपका मूव करता है वहां पे। और उस डिस्प्लेसमेंट को y को मैंने, बिकॉज यहाँ पे x लिखा है, मैंने x लिख दिया, x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी। इसका डेरिवेटिव ले लिया r ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये डेरिवेटिव इसका लेने के बाद ये जो कॉस ओमेगा टी है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडर द रूट लिख दिया। साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद थोड़ा सा टर्म्स को रीशफल कर लिया है, आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यही वेलोसिटी को ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में, रिलेशनशिप में सब्स्टिट्यूट कर दिया है और आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है। सो गुरसिमरन बेटा चेक करके बताओ, इज इट क्लियर नाउ बेटा? गुरसिमरन, गुरसिमरन, ओके बेटा। सो बेटे, टोटल एनर्जी की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो हमारे पास डियर चिल्ड्रन टोटल एनर्जी जो आ रही है, दोनों को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट दिस टोटल एनर्जी टू बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो दोनों आपका टाइप की एनर्जीज आपका जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसने ये दोनों एनर्जीज पोजेस कर रखी हैं, 1/2 m ओमेगा² r² माइनस x²। सो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन कर दूं तो थोड़ा सा टर्म्स की रीएडजस्टमेंट कर लें, वी विल गेट 1/2 m ओमेगा² x² प्लस 1/2 m ओमेगा² r² माइनस 1/2 m ओमेगा² x²। ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, और आपके पास टोटल एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा² एंड r का स्क्वायर। ये आपके पास बेटे टोटल एनर्जी आपके पार्टिकल की निकल आती है। बच्चों, एग्जाम्स में छोटे मोटे न्यूमेरिकल जिसके बेसिस पे जरूर पूछे जाते हैं, आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन तीनों के फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे, ये वाला और ये दोनों, तो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब आइए थोड़ा मैं और ग्राफिकली अगर हम शो करना चाहें इन एनर्जीज को, आइए देखें बेटे, एट द मीन पोजीशन, जब आप मीन पोजीशन की बात करते हो, मीन पोजीशन पर आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x बेटे 0 होगा, बिकॉज आपने डिस्प्लेस ही नहीं किया। इसमें पुट कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी 0, एंड काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू x को 0 पुट कर दिया, 1/2 m ओमेगा² r²। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी के बराबर आ गई। इन सिंपल वर्ड्स, मीन पोजीशन पर
आपके पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम बात करें एट एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू r, यहां पुट कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी दिस इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एंड r स्क्वायर, ये देखिए टोटल एनर्जी के बराबर आ गई। एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे r पुट करोगे तो इट विल बिकम 0। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ब्रॉड व्यू है कि मीन पोजीशन पर आपके पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी दैट इज मैक्सिमम एंड एट द एक्सट्रीम पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। इसी चीज को ग्राफिकली अगर हमने डिपिक्ट करना हो, शो करना हो, हम बच्चों ऐसे शो कर सकते हैं। ये आपका वर्टिकल एक्सिस एनर्जी इंडिकेट कर रहा है और आपका पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज मीन पोजीशन पर 0 है, तो आप अंदाजे से ये लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा। आपका बच्चों ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये बन गया जी, जो मैंने फुल लाइन शो की है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड बेटे डियर चिल्ड्रन, अगर आप बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की बेटा, तो ये डॉटेड लाइन जो है ये काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट कर देती है दिस वे, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। एंड डियर चिल्ड्रन, ये टोटल एनर्जी आपकी जो है इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो। सो दिस इज द ग्राफिकल व्यू ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन possessed by the particle executing SHM बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, एक बार देख के बताइए सारा क्लियर है तो मैं आगे चलूं पुत्र। ऑल ऑफ यू बेटा एक बार चेक करके बताइएगा, इज इट क्लियर टू ऑल बेटे? सहज, नमन, रमन, राघव, ओके बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, इसके बाद मेरे पास है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, आइए ब्रीफली बात करके देखें। व्हाट डू वी मीन बाय डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन? लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटे। ये आर्टिकल जो हमने बेटे किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल या इटसेल्फ ये एग्जाम्स में आपको बहुत पूछा जाता रहा है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस बहुत ही ध्यान से बेटे समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक बेटा सिंपल पेंडुलम है, आपने सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, वो ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने लैब में किया भी था, उसकी वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होके इट कम्स टू स्टॉप ऑल टुगेदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर का रेजिस्टेंस है, एयर का उसके मोशन के लिए जो अपोजिशन है बेटा, वो उसमें एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप कर देता है उसकी एनर्जी का, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली लॉस होता रहता है। और अगर बच्चों एनर्जी का लॉस होगा तो आपकी जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशंस का वो भी विद द पैसेज ऑफ द टाइम कम होता जाता है। इन सिंपल वर्ड्स बेटा, अगर मैं ये आपका जो मोशन है इसको प्लॉट कर लूं बेटे, इधर मैंने ले लिया टाइम बेटा, इधर डिस्प्लेसमेंट लिया, इस तरीके से आपका ग्राफ बच्चों जो है ध्यान से देखिएगा, ये मैं थोड़ा आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आपका पहले इस तरीके से होता है बेटा एम्पलीट्यूड, देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज इंडिकेटेड बेटा, और ये जो डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड है दिस इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिव फोर्सेस ऑफर्ड बाय द एयर। सो इसका मीनिंग बेटे ये हुआ कि आपका जो पार्टिकल है, जो आप सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हो, उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम एयर का फ्रिक्शन इस एम्पलीट्यूड को धीरे 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 कम कर रहा है, और वो आपके सिंपल पेंडुलम को थोड़े टाइम के बाद बेटा मीन पोजीशन पर रोक देगा। ऐसी ऑसिलेशंस जिनमें
एम्पलीट्यूड में लगातार कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज नोटिस की जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिव फोर्सेस बेटे, इसको बोल देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इमेजिन करिएगा जितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, अगर आप उतनी एनर्जी उसको दे ही जा रहे हो, साथ साथ ही उसने एक बार ऑसिलेट किया, जितना लॉस हुआ आपने एनर्जी दे दी, थोड़ा सा उसको धक्का लगा के एनर्जी दे दी। और अगर ऐसा होगा तो आपका जो ग्राफ है इसी केस में, इसमें बेटे फिर आपका एम्पलीट्यूड जो है सिंपल पेंडुलम का वो कम नहीं होगा, बिकॉज आप एनर्जी साथ साथ उसको दे ही जा रहे हो, जितना लॉस हुआ आपने उतनी एनर्जी उसको दे दी, साथ ही साथ दे दी है, तो उस केस में आपका ग्राफ जो है ऐसा आ जाएगा। दीज आर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस बेटा। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस तब होंगी जब आप जितना एनर्जी का लॉस हो रहा है वो लॉस साथ ही साथ कंपनसेट कर रहे हो, दे ही जा रहे हो एनर्जी उसको, अपने सिस्टम को। आपका सिस्टम रुकना चाहता है लेकिन आप हल्का सा ऐसे उसको पुश कर देते हो हर बार, और वो चला रहता है, उसके एम्पलीट्यूड में इस तरीके से डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता। दिस इज कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। मे आई होप इट्स क्लियर टू ऑल बेटा। अर्शप्रीत कौर, गुरसिमरन, दृष्टि, देवनूर, अदिति, सहज, रमन, राघव, नमन, जपन, इश्नूर, अंजलि। ओके बेटा, ठीक है बेटा। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास और है। फ्री ऑसिलेशंस क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या है, कपल्ड ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम वेव्स पे आ जाएंगे बेटा। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक में आपका सिलेबस खत्म कर दूं बेटा। आइए देखिए बेटा, इसके बाद हमारे पास है फ्री वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस भी कह सकते हो। देन बेटे फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस भी कह सकते हो आप, एंड कपल्ड ऑसिलेटर्स। ये सारी चीजें क्या हैं, आइए वन बाय वन डिस्कस करें, इनको समझें। फ्री ऑसिलेशंस को पहले समझिएगा। आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, आपने सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से और उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। वो मूव कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आप उसको कोई भी एडिशनल एनर्जी आफ्टर यू आर टेकिंग इट टू द एक्सट्रीम पोजीशन नहीं दे रहे हैं। तो वो जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना भी उसका लेंथ होगा, उस लेंथ के हिसाब से उसका कुछ टाइम पीरियड, आपने ऑलरेडी टाइम पीरियड की बात की हुई है 2 पाई रूट एल अपॉन जी, या t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन के, कुछ ऐसा आपने किया होगा बेटा। और अगर आप इन दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं, इट विल बी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन l इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। और अगर आप कोई मास टाई कर देते हो स्प्रिंग वगैरह के साथ, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m। तो इन दोनों को आप बेटे समझिए, जरा ध्यान दीजिएगा। सिंपल पेंडुलम था, आपने बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गए, छोड़ दिया, वो ऐसे 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 ऐसे, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसके लेंथ के हिसाब से, या आपके पास स्प्रिंग था, आपने इलोंगेट करके उसको छोड़ दिया, वो ऐसे 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 करने लग गया, और उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। मास और स्प्रिंग कांस्टेंट के हिसाब से आप इस उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो अब वाइब्रेशंस इंडिकेट करेगा, बिकॉज दैट सिस्टम इज फ्री टू ऑसिलेट, फ्री टू वाइब्रेट। इन ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस को आप बेटा फ्री वाइब्रेशंस के नाम से बेटा जानते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, फ्री वाइब्रेशंस जो हैं, दीज आर द वाइब्रेशंस इंडिकेटेड बाय द पार्टिकल executing simple harmonic motion when it is let to move freely after it is subjected to the extreme position and left to move at such way. So we will say that free vibrations जो हैं, free vibrations are the vibrations shown by a system which
vibrates freely, it is not subjected to any force from आउटसाइड। इनिशियली आपने जरूर उसको डिस्प्लेस किया था, उसके बाद आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये सिंपल पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये आपके स्प्रिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आप इनका एग्जांपल बच्चों दे सकते हो। इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है फोर्स्ड वाइब्रेशंस की। ट्यूनिंग फॉर्क में भी आपने शायद छोटी क्लासेस में कभी लेबोरेटरी में देखा होगा, इस तरीके का ट्यूनिंग फॉर्क होता है। अगर अभी कंडीशंस कंडक्टिव होती हैं तो आपको मैं लेबोरेटरी में ले जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा फिर। ये आपका होता है बेटे ट्यूनिंग फॉर्क। इनको बोल देते हैं बेटे प्रॉन्ग्स, ये वाले जो हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेम। इसको आपने यहां से स्टेम से पकड़कर ऐसे रबर पैड के अगेंस्ट स्ट्राइक करवाया। जब आप स्ट्राइक करवाओगे तो ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करने लगते हैं ऐसे, और इस पे बेटे यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, यहाँ पर किसी पे लिखा होता है 512, कहीं पे लिखा होता है 482, किसी पे लिखा होता है 348। वो इन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। आपने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क पकड़ी स्टेम से, उसको रबर पैड की अगेंस्ट स्ट्राइक करवाया। अब ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट कर रहे हैं इसकी। इन वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग्स को स्टेम से पकड़कर आपने टेबल की सरफेस पर स्टेम को टच करवा दिया, तो आपका जो टेबल का सरफेस है दैट विल आल्सो बी सेट इनटू वाइब्रेशंस, और उन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड की बात छोड़ दीजिए, फ्रीक्वेंसी इसके बराबर की फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी। द टेबल सरफेस इज सेट इनटू द फोर्स्ड वाइब्रेशंस बाय दिस सिस्टम बाय द ट्यूनिंग फॉर्क। ये जो सिस्टम टेबल को फोर्स कर रहा है वाइब्रेट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स, ये उसको ड्राइव कर रहा है। और जो टेबल सरफेस है दैट इज कॉल्ड ड्रिवन सिस्टम। सो इन दिस वे बेटे आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी जो अपनी है, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। टेबल वाइब्रेट जनरली नहीं करता, अब टेबल क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वाइब्रेट कर रहा है, टेबल की सरफेस की वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज फोर्स्ड वाइब्रेशंस। और इन दिस वे बेटे आप अपना फ्री, फोर्स्ड एंड नेचुरल जो आपकी वाइब्रेशंस हैं इनके बीच में फर्क समझ सकते हो बेटा। सो बेटा फोर्स्ड वाइब्रेशंस में हम क्या लिख पाएंगे, लेट अस कंप्लीट दैट पार्ट आल्सो बेटा। व्हेन a system is subjected to vibrations by some external driving source, it is said to possess forced vibrations बेटा। forced vibrations, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल vibrations produced in the table surface when a tuning fork is pressed against the surface of the table। तो वो आपकी बेटे फोर्स वाइब्रेशंस होती हैं। और ये सिस्टम की जो वाइब्रेशंस हैं ये इसकी नेचुरल या ये इसकी फ्री वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी हम नोटिस कर सकते हैं बेटा।
सो ये बेटे आपका फोर्स्ड वाइब्रेशंस था। इसके बाद बेटे कपल्ड ऑसिलेटर्स भी 1 मिनट का काम है, वो भी देख लीजिएगा। कपल्ड ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? जब बेटे आप बात करते हो कि आपके पास बेटे जो वाइब्रेशंस हैं बेटा, इनको आप लिंक कर लेते हो एक दूसरे से बेटा। ए बॉडी ऑफ मास m बेटे जब आप सस्पेंड कर देते हैं और उस बॉडी को बेटे आप किसी और सिस्टम के साथ अटैच कर देते हो। आइए देखें बेटे कपल्ड ऑसिलेटर्स। ये आपके पास बेटे एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक हुक है, एक और स्प्रिंग है, एक और हुक है, एक और स्प्रिंग है। इनको आपने देखी 1 2 3 स्प्रिंग आपने अटैच कर रखे हैं इस तरीके से। अगर आप स्प्रिंग नंबर 1 को कंप्रेस कर दोगे, स्प्रिंग नंबर 1 2 एंड 3 तीनों वाइब्रेट करने लगेंगे। आपने जब बेटे ऑसिलेटर्स को लिंक कर दिया in such a way that there is the transfer of energy or there is flow of energy from one oscillator to the other oscillator, then ये coupled oscillators कहलाते हैं बेटा। When a number of oscillators are linked in such a way that there can be energy flow among them, then such a system is called with a coupled oscillators बेटा। So खुद इमेजिन करिएगा, अगर आप 3 स्प्रिंग्स को सीरीज में अटैच कर दोगे, आपने उनको कपल करके रखा हुआ है, टाई करके रखा हुआ है एक दूसरे के साथ। एक को डिस्प्लेस करोगे तो एक को अगर आप कंप्रेस करोगे, दोनों दूसरे इलोंगेट हो जाएंगे। जब उसको रिलीज करोगे तो तीनों सिस्टम्स आपके इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे और इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफरेंस बेटे चलता रहता है। सो ये बेटे आपका था कपल्ड ऑसिलेटर्स का सिस्टम बेटे। किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट बेटे पूछना है, कोई बात नहीं पता चली, यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं बेटा। अंजलि, इश्नूर, जपन, नमन, राघव, रमन, सहज, अदिति, देवलू, दृष्टि, गुरसिमरन, अर्शप्रीत कौर और नहीं कोई भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे बच्चा। सो ठीक है बेटे, वेरी नाइस। 1 2 न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे एनर्जी के साथ रिलेटेड आपको करवाकर देन आई विल नेक्स्ट टाइम बेटे प्रोसीड विद द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज वेव मोशन बेटा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की नेक्स्ट वीक में आपका वो भी कंप्लीट हो जाए, देन यू विल बी फ्री। आपका सिलेबस अगर फिनिश हो जाएगा तो फिर आप अपना प्रैक्टिकल्स आप साथ साथ कर ही रहे हो बेटा। आपने ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला ऑलरेडी कर लिया है, एक और आपको नेक्स्ट वीक में करवा दूंगा मैं, देन वी विल बी बेटा मैनेजिंग द थिंग्स इन दिस वे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटे। थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू बेटा।